Let's improve English. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. आपकी बात कोई नहीं काटेगा. इंग्लिश में से कह सकते हैं No one will defy you. No one will defy you. Defy करना मतलब कोई कुछ कह रहा है और आप कह रहे हो नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसे डिफाई करना बोलते हैं, बात काटना बोलते हैं, आज्ञा ना मानना बोलते हैं. नो वन विल डिफाई यू. इसे ऐसे भी कह सकते हैं नो वन विल गो अगेंस्ट यू. नो वन विल गो अगेंस्ट यू. आपके खिलाफ कोई नहीं जाएगा, आप जो बोलेंगे वही होगा. अपने मन से चिंता निकाल दो. इंग्लिश में कहेंगे गेट द एंग्जाइटी आउट ऑफ योर माइंड. गेट द एंग्जाइटी और स्ट्रेस आउट ऑफ योर माइंड. वो दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल हैं. दोनों ने जिद पकड़ी हुई है. इंग्लिश में कहेंगे बोथ ऑफ देम आर एडमेंट. बोथ ऑफ देम आर एडमेंट. When you are adamant, it means you want something and you are not willing to step back. You are stubborn. You are being stubborn, obstinate. आप obdurate भी कह सकते हैं इसी के लिए. Obdurate. You are being obdurate. Obdurate. अड़ियल. बात पर अटल. जो बोल दिया वो बोल दिया बस. आपको sentences ज़रूर बनाने हैं. For instance, you shouldn't be adamant. I don't know why my brother is so adamant. When will you stop being so adamant? I kept trying to persuade him to accompany me to the market, but he remained adamant. He is adamant about going to the fun fair. आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. खुशी का कोई ठिकाना नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आज. इंग्लिश में कह सकते हैं My happiness knows no bounds today. My happiness knows no bounds today. इसे हम इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं I am beside myself with happiness today. When you are beside yourself with some emotion, it means that emotion is extreme. I am beside myself with happiness today. इसके अलावा आप इंग्लिश में खुश होने को elated होना कह सकते हैं, ecstatic होना या overjoyed होना भी कह सकते हैं. I am overjoyed today, elated today, ecstatic today. ये जगह तो सन्नाटे से घिरी हुई है. इंग्लिश में कहेंगे This place is forlorn और This place is deserted. Deserted और forlorn. More examples. I don't like going to that place because it is deserted. Every time I go to deserted places, I get scared to death. Who wants to go to that deserted place? After everyone had gone to the market, the house became deserted. After the destruction of the whole city, it became deserted. एक भयंकर तूफान आने वाला है. इंग्लिश में कह सकते हैं There is going to be a terrible storm. There is going to be a terrible storm. भयंकर, terrible, fierce, horrible, disastrous. इस तरह से आप वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. Terrible storm. More examples. There was a terrible storm yesterday. कल बहुत भयंकर तूफान आया था. Storms are very likely in this place. His house was destroyed by a terrible storm. I don't want to put my life on line by living in a place which is vulnerable to storms. मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ. जब भी आप कहते हैं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के मुकाबले में कुछ नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ उसके मुकाबले में बहुत कम है. इंग्लिश में कहें I am no match for him. I am no match for him. More examples. तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे मुकाबले में कुछ नहीं है. You don't worry, he is no match for you. मुझे तो पता था कि वो मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है. I knew that he was no match for me. मुझे डर इस बात का है कि मैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ और लोग मुझे उससे लड़ने के लिए बोल रहे हैं. I am afraid about the fact that I am no match for him and people are trying to persuade me to fight with him. मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ. I know that I am no match for you. वो बस आने ही वाला होगा. जब आप घर में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, वो बस आने ही वाला होगा. इस तरह से प्रेजेंट की जब बात होती है तो इंग्लिश में कहते हैं He should be about to come any moment. He should be about to come. यानी उसे आ ही जाना चाहिए, बस आने ही वाला है, आने वाला होगा. He should be about to come any moment. अभी come को आप रिप्लेस कर सकते हैं. आप कह सकते हैं He should be about to show up. He should be about to turn up.
or he should be along any moment. Be along means to arrive somewhere. More examples. I will be along by tomorrow. I will be along around 5 p.m. When will you be along? ये कुर्सी इस मेज के सामने फीकी लग रही है. अब आप खुद ही देखो, ये रही मेज और ये है कुर्सियां. तो ये कुर्सियां जो है मेज के सामने फीकी लग रही है. These chairs look plain as compared to the table. These chairs look plain as compared to the table. जब भी आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि ये चीज़ तो एकदम फीकी लग रही है, मतलब आप प्लेन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. ये प्लेन है, एकदम प्लेन है. कोई स्टाइलिश, मॉडर्न या एंटीक पीस नहीं है, ऐसा कुछ मैग्निफिसेंट नहीं है, प्लेन है. These chairs look plain as compared to the table. इस घर में एक पल की शांति नहीं है. When you are frustrated and say something like this, you can say that in English like this. There isn't a moment of peace in this house. There isn't a moment of peace in this house. More examples. I didn't get a moment of peace in his house. मुझे ऐसी जगहों में जाना नहीं पसंद जहाँ एक पल की भी शांति नसीब ना हो. I don't like to go to such places where one is not lucky enough to get a moment of peace. मैं बस एक पल की शांति चाहता हूँ. I just want a moment of peace. अगर इस घर में एक पल की भी शांति होती तो मैं इस घर में अपना ज़्यादा समय बिताता. If there were a moment of peace in this house, I would spend more time here. मेरी कमर में दर्द हो रहा है. अब यहाँ पर ये अक्सर लोग इसको गलत बना सकते हैं क्योंकि हमें लगता है ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं माई बैक हर्ट्स. माई बैक हर्ट्स. If any part of your body hurts, if there is pain in any part of your body, you mention the name of that part and you say hurts. This hurts, that hurts, my back hurts. क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से एक स्टेट जैसा है. कहीं पर दर्द है तो वो स्टेट बनी हुई है, या तो दर्द है या नहीं है. इसमें कुछ एक्शन नहीं है कि हो रहा है. वो एक स्टेट की तरह है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है. इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं I've got a backache. एक का मतलब दर्द होता है. सर का दर्द हेडेक, कान का दर्द ईयरएक, दांत का दर्द टूथएक. उसी तरह बैकएक. तुमने ये शर्ट क्यों पहनी हुई है? सिंपल सा सेंटेंस है. आप इसे कह सकते हैं वाई आर यू वेयरिंग दिस शर्ट. वाई हैव यू वॉर्न दिस शर्ट, या फिर वाई डू यू हैव दिस शर्ट ऑन. दिस इज द मोस्ट स्टाइलिश वे टू से दिस. हैव समथिंग ऑन, कुछ पहने हुए होना. वाई डू यू हैव दिस शर्ट ऑन, तुमने ये शर्ट क्यों पहनी हुई है. वाई डू यू हैव दिस शर्ट ऑन. मोर एग्जाम्पल्स. उसने एक नीली शर्ट पहनी हुई थी. ही हैड अ ब्लू शर्ट ऑन. उसने क्या पहना हुआ था. वॉट डिड ही हैव ऑन. मुझे क्या पहनना चाहिए. वॉट शुड आई हैव ऑन. तुम्हें ये कैप पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू हैव दिस कैप ऑन. इस वीडियो में इतना ही. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.